Hello student, welcome back with the new day, new chapter. Today we will discuss our chapter from the geography, that is drainage. That is our today's topic. First of all, we will start with the introduction. After then we see the different types of drainage pattern and the most famous drainage pattern which is in our India, and after then the differentiate between the Himalaya river system and the Peninsular river system. And at the last we will discuss about the lakes and its important, or at the last we will discuss something about the rivers and the rivers pollution, which is a very economical or the social problem at the current time period. Let's begin our chapter. The term drainage describe the river system of an area, and the world largest drainage basin is of the Amazon rivers in the South Africa. Basically जब हम river basins के बारे में बात करते हैं, यानी कि the rivers and its tributaries covers the area is known as the drainage basin, यानी कि जो रिवर जहाँ जहाँ से होके बहती है और उसके ट्रिब्यूटरीज उसका ड्रेनेज एरिया कहलाता है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन इज अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका, एंड इन इंडिया दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम इज द बिगेस्ट रिवर ड्रेनेज सिस्टम. Any elevated area such as the mountain or an upland separated two drainage basins, which is called the water divided. ये देख लो. सो यानी कि किसी एक माउंटेन का ऊंचा हिस्सा जो रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, दैट इज नोन एज द वाटर डिवाइडेड. फॉर एग्जांपल, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड ऑफ इंडस एंड द गंगा रिवर बेसिन. अंबाला को ही श्रेय जाता है कि उसने गंगा और इंडस रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन द टू डिफरेंट डायरेक्शन. The area drainage by a single river system is called a drainage basin. Now come to the types of a different drainage basins. The streams which are drainage basins from the certain pattern depending on the slopes of land, that is the first criteria, underlying rock structure as well as the climatic conditions of the area. These patterns are called the drainage pattern. Basically the drainage pattern has a four type, that the dendritic pattern, rectangular pattern, trellis pattern and the radial pattern. Let's start with the first one, that is the dendritic patterns. In this pattern, the rivers and its tributaries follows the slopes and the trees just like the branches of the tree. That is the drainage pattern, that is A1. एक पेड़ की तरह होती है जो एक एरिया से निकल के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज उसमें मिलती जाती हैं. दैट इज द ड्रेनेज पैटर्न डेंड्रेटिक. सेकंड इज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न when the rocks are strongly joined and the rectangular pattern develop, that is the rectangular pattern. अब आप देख रहे हैं in the C, second one जो हमारा rectangular pattern, ये देख लें, that is the second example, rectangular pattern. The third one is a trellis pattern. This pattern develop where the hard and the soft rock exit parallel to each other so that the tributaries join the rivers at most right angle, यानी कि ये एक दूसरे से right angle में मिलते हैं ट्रिब्यूटरीज. यहाँ पे आप देखेंगे इन द थर्ड जो हमारा चौथा डायग्राम है, द ट्रेलिस पैटर्न, जिसमें सारी ट्रिब्यूटरीज एक राइट एंगल में उनसे मिल रही है मेन रिवर से. एंड द फोर्थ इज द रेडियल पैटर्न. द पैटर्न डेवलप व्हेन द स्ट्रीम्स फ्लोस इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन पीक और द डोम्स लाइक स्ट्रक्चर. ये आप देख रहे हैं बी हमारे इसमें वल्कनो बना हुआ है और उसमें से रिवर्स निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को. दैट इज द डिफरेंस पैटर्न. ये देख लें. सो आप इसका डायग्राम को भी बड़े ध्यान से देखिएगा. इट मस्ट बी क्लियर हियर कि पैटर्न कैसा होता है, रिवर कैसे निकलती है और उनका पैटर्न किस तरह से बनता है. नाउ कम टू द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. बेसिकली हम जब ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, देयर इज द डिवाइडेशन इन द टू पार्ट, दैट इज द हिमालय रिवर सिस्टम, दैट इज द बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड वन, दैट इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. इन द हिमालय रिवर सिस्टम देयर इज अ थ्री river system, that is the first is the Indus river system, second is the Ganga river system and the third is the Brahmaputra river system, which is the major source of the water in northern area. And the second is the peninsular river system, in which they are divided in the eastern flow rivers and the western flows rivers. Okay, come to the first Himalaya river system. Basically most of the Himalayan rivers are perennial in nature, which means they have the water throughout the year. ये देखिए पूरे साल भर इन रिवर्स में पानी रहता है. The river receives water from the rain as well as the melted snow for the high mountain, यानी कि इनके रिवर्स में वाटर का सोर्स एक तो रेनफॉल है, दूसरा स्नो. देखिए the Indus and the Brahmaputra are the major Himalayan rivers. They originated from the north of mountain range. ये देख लिया हिमालय के नॉर्थ से निकलती हैं. द हिमालय रिवर्स हैज लॉन्ग कोर्स
फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी, यानी कि हिमालय रिवर्स से निकलने वाली रिवर्स बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं. These rivers perform intensive erosion activities in their upper course and they carry huge loads in the silts and the sands. अगर हम रिवर्स के रास्ते को डिवाइड करें, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स, वो हर कोर्स में अपने अपने तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है. सबसे ज़्यादा इरोक्शन एक्टिविटीज़ वो अपने अपर कोर्स में बनाती है, जहाँ पे वो माउंटेन से नीचे उतरती है, बिकॉज द फोर्स इज़ वेरी हाई एट दैट टाइम. The rivers from the meanders, oxbow lakes, and the other deposit features during their middles and the lower course in the floodplain. ये देख ले, हर एक लेवल में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है. वो ऑक्सबो लेक बनाती है, फ्लड प्लेन बनाती है, और कई तरह के शेप्स, वी शेप्स, वैलीज और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट्स करती है इन द डिफरेंट लेवल्स. ये देख ले, दिस रिवर्स हैव द वेल डेवलप्ड डेल्टा ऑल्सो. यू आर सीइंग, ये हमारा एक मैप है जिसमें डिफरेंट तरह के रिवर सिस्टम को दिखा रखा है. इन द पाकिस्तान दैट द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, एंड इन द सदर्न पोर्शन देयर इज अ डिफरेंट रिवर सिस्टम. ये देख लिया, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ से नीचे का जो भी एरिया है जिसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आप देख रहे हैं, दैट इज इन द पेनिसुलर रिवर सिस्टम. इसी तरह से इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज द हिमालय रिवर सिस्टम, पार्ट ऑफ द हिमालय रिवर सिस्टम. ठीक है, इसमें आप डिफरेंट रिवर्स की लंबाई भी देख रहे हैं. गंगा 2525 किलोमीटर विच इज़ द बिगेस्ट रिवर्स, एंड गोदावरी इन द सदर्न पोर्शन दैट इज द 1465 किलोमीटर नियर अबाउट. सो दिस इज द लेंथ ऑफ ए डिफरेंट रिवर्स एंड द रिवर सिस्टम. सो दैट इज द features made by the rivers in the different course. In the upper course they will made a V gorge, V shapes gorge, and the lots of the feature. In the middle say that is the meanders, oxbow, and in the lower case it will be made द डेल्टा फीचर्स है. यानी कि अपने रिवर्स में जब माउंटेन से निकलती है वहाँ पे ओशन तक मिलने तक वो बीच में कई तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है. क्लियर? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट feature which is made by the rivers or the river system. Now come to the peninsular river system. These are the seasonal rivers as their flows is dependent on the rainfall, यानी कि ये seasonal हैं, बारिश के समय में इनमें पानी होता है. During the dry season the large rivers even reduce the flows of the water in their canal. In their channels, these rivers have the shorter and the shallow course in the comparison to the Himalaya rivers. अगर हम इनका कंपैरिजन करें रिवर्स हिमालय रिवर से तो ये छोटी होती हैं और बेसिकली इनमें पानी भी कम होता है. Most peninsular rivers originate in the Western Ghat and the flows towards the Bay of Bengal like the Mahanadi and Godavari rivers etc. Where are the some rivers which originate in the Sunland highland from the western directions in the Arabic Sea, जिनको हम western flow rivers कहते हैं. Two rivers are the नर्मदा एंड द तापी. ये देख लो, तो पेनिसुलर रिवर्स को हम ईस्टर्न फ्लो और वेस्टर्न फ्लो रिवर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट रिवर सिस्टम विच इज द हिमालय रिवर सिस्टम. टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट दैट द इंडस रिवर सिस्टम. द इंडस रिवर्स राइसेस फ्रॉम द चाइना इन द Tibet near the Mansarovar Lake. Declare it's originated from the Mansarovar lakes. It flows the westward and the enters India in the Ladakh district of the Jammu and the Kashmir. And main tributaries of the Indus River system is the Satluj, Bias, Ravi, Chenab, and the Jhelum. You declare they will be joined Indus near the Mithakot in the Pakistan. You declare. So Indus flows southward till the reaches through Arabic Sea east of the Karachi port in the Pakistan. The Indus flows southward till it reached to the Arabic Sea east of the Karachi port in the Pakistan. It has the total length of the 2,900 kilometers and it is one of the longest rivers of the world. Its one-third basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब. द रेस्ट इज़ इन पाकिस्तान, यानी कि इस रिवर्स का मैक्सिमम पोर्शन पाकिस्तान में फ्लो करता है और इंडिया में भी इसका जो एरिया है दैट इज द जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड द पंजाब, फ्यू एरिया ऑफ द पंजाब. एज पर द इंडस वैली वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन द पाकिस्तान एंड द इंडिया इन 1960 वी कैन ओनली यूटिलाइज 20% ऑफ द वाटर्स विच कैरीज बाय द इंडस रिवर सिस्टम. यानी कि हम केवल इस रिवर सिस्टम को 20% ही वाटर यूज़ करते हैं. That is the rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and the Satluj. That is the few river. और पंजाब को इसीलिए पंजाब में यानी कि 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है. क्लियर? सो दैट द इंडस रिवर सिस्टम जो चाइना के मानसरोवर लेक से निकलते हुए और हमारे पाकिस्तान में एंटर करते हुए हमारे अरेबिक सी में मिल जाती है. ये देख लिया. नाउ कम टू द सेकंड रिवर सिस्टम दैट इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट द गंगा रिवर सिस्टम. दिस सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम एज द Bhagirathi from the Gangotri glaciers in Uttarakhand and it's joined by the Alaknanda river in the Devprayag
ओके, यानी कि जो गंगा ओरिजिनेटेड होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ पे इसका नाम भागीरथी है, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसको गंगा कहा जाता है। इट्स लेंथ इज ओवर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम भागीरथी टू एट द लास्ट स्पॉट, okay, where he worked the Sundarban Delta. At Haridwar, the Ganga emerged from the mountains to the plain. Okay, हरिद्वार में गंगा प्लेन्स एरिया में इमर्ज होती है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज will connect with him, that is the Yamuna, Ghagra, Gandak and the Koshi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glaciers in the Himalaya. It flows parallel to the Ganga, as in the right bank tributaries it meets the Ganga at the Allahabad. यानी कि यमुना नदी गंगा नदी के पैरेलल ही निकलती है। ये देख लें, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, गंगा और यमुना लगभग पैरेलल होती है और इलाहाबाद में जाके ये गंगा यमुना गंगा में जाके मिल जाती है। देख लें, नाउ द घाघरा, द गंडक एंड द कोशी राइसेस इन द नेपाल हिमालय। द गंगा में ट्रिब्यूटरीज विद सम ऑफ द पेनिसुलर अपलैंड इन द चंबल, बेतवा एंड द सोन, यानी कि कई रिवर्स इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ आके मिलती है गंगा में, और कई नॉर्थ से मिलकर नेपाल से निकलने वाली घाघरा, गंडक, कोशी नॉर्थ से गंगा में आके मिलती हैं। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टू द फरक्का डैम इन द वेस्ट बंगाल। फरक्का इज अ प्लेस। Here it's divided into two branches in the form of a distribution known as the Bhagirath and the Hooghly, known as the Hooghly rivers, which flows in the Bay of Bengal. The main streams of Ganga flow into the Bangladesh, where its joins with the Brahmaputra come from the Assam to form the Meghna. यानी कि बांग्लादेश में इसको गंगा नदी को ही मेघना कहा जाता है। It flows into the Bay of Bengal, forming the Sundarban Delta, which is the biggest delta in the world. Is it clear? So आप इस रिवर्स में देख सकते हैं यहाँ पे कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुना उसके पैरेलल में है, चंबल उसको नीचे से मिल रही है सदर्न पोर्शन से, वहीं गंडक और कोसी उसको नेपाल से आके यहाँ पे मिलती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर इससे मिलती है, जहाँ पे इसका नाम मेघना होती है, और एट द लास्ट, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ये बनाते हैं। Now come to the third river system, that is the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in the Tibet east of the Mansarovar Lake, यानी कि जैसे कि इंडस मानसरोवर लेक से निकलती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय टिल इट रीचेस द नामचा बरुआ माउंटेन, which height is 7,757 meters, where it's take the U-turn and enter in India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called the Dihang. यहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। It is slightly longer than the Indus and the most of its course lies outside India. ओके, ज़्यादातर इसका बहाव क्षेत्र यानी कि एरिया इंडिया के बाहर ही है। इट्स जॉइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज लाइक द दिबांग, लोहित एक्सेट्रा टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन द असम। इट कैरीज वेरी लिटिल सिल्ट्स एंड द वाटर फ्रॉम द टिबेट। इट इज़ ए कूल एंड अ ड्राई एरिया। ये देख ले, टिबेट बहुत ड्राई और सूखा ठंडा इलाका है। In Assam, it carries a large amount of the water and a large amount of the silt because the Assam is a heavy rainfall area. ये देख लिया, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी और सिल्ट आके मिलता है, सेडिमेंट्स मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। It has a braided canals in Assam forming the many rivers. आइसलैंड, यहाँ पे रिवर्स में कई बड़े आइसलैंड भी बनते हैं इस रिवर्स में, जिसमें माजुली आइसलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर्स आइसलैंड इज फॉर्म्ड बाय इट। देख लें, ब्रह्मपुत्र रिवर से ही जो माजुली आइसलैंड बनता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड माना जाता है। ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स ड्यूरिंग द मानसून एवरी ईयर, यानी कि हर साल इस ब्रह्मपुत्र रिवर में बाढ़ आ जाती है, कॉजिंग द सेवरल फ्लड्स इन द एरिया ऑफ द असम एंड द बांग्लादेश। Now come to the second river system, that is the peninsular river system. The major rivers of the peninsular rivers are the Godavari, the Mahanadi, the Krishna and the Kaveri. They flow eastward and drain into the Bay of Bengal. These rivers make the delta at their mouth. And another is the western flow rivers, the Tapi and the Narmada is the western flow rivers which makes the estuary, यानी कि ये कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि अपने समुद्र में मिलने से पहले वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करते, एक सीधी लाइन में समुद्र में मिल जाती, दैट इज द एस्चुरियम। नाउ let's discuss with the Narmada and the Tapti. The Narmada basins or the Narmada rises from the Amarkatak hills in the of Madhya Pradesh. It flows toward the west in the Rift Valley formed due to the geological fault. The Narmada basins covers the part of Madhya Pradesh and the Gujarat. ये देख ले, यानी कि वेस्टर्न फ्लो में सबसे बड़ी रिवर नर्मदा ही है। The second one is the Tapti rivers, that is the Tapi basin. The Tapi rises in the Satpura range in the Betul districts of the Madhya Pradesh. It flows in the Rift Valley parallel to the Narmada, but it is the much shorter in the length. It's cover the part of Madhya Pradesh, Gujarat,
Maharashtra, and it's covered the distance of 724 kilometer. Okay. Now आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द नर्मदा एंड द ताप्ती, ठीक है, दैट इज द वेस्टर्न फ्लो रिवर। और ईस्टर्न फ्लो के बारे में बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये देख लें, दैट इज द ईस्टर्न फ्लो रिवर्स, देख लें। नाउ कम टू द गोदावरी बेसिन्स। गोदावरी रिवर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द सदर्न or in the peninsular area. The river Godavari rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik districts of Madhya Pradesh, Maharashtra. It is the longest rivers, about 1500 km, having the largest running basins and the largest delta of the peninsular rivers. यानी कि peninsular rivers में सबसे बड़ी रिवर गोदावरी रिवर है, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, because it is the longest rivers in the peninsular area. The Godavari has the many tributaries, Manjura, Vainganga and the Penganga, Purma and the Wardha and the Parinata. ठीक है, कई रिवर्स हैं जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। द गोदावरी बेसिन कवर्स द पार्ट ऑफ ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड द आंध्र प्रदेश। इस ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप इस रिवर्स की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है, किन किन एरिया में बज रही हैं, और कई ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं और लास्ट में ही बे ऑफ बंगाल में मिक्सअप हो जाती है। द सेकेंड इज द महानदी बेसिन। अब हम बात करें अपनी महानदी के बारे में, ठीक है। नाउ the Mahanadi rises in the highland of Chhattisgarh and flows through the Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 km. It drains basins is shared by the Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and the Odisha. Now come to the next one, that is the Krishna basin. Krishna rivers आप यहाँ पे देख रहे हैं, in the southern, सबसे साउथ में कृष्ण, साउथ में कावेरी, उससे ऊपर कृष्णा रिवर्स। कृष्णा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। The Krishna rivers rises from the western Ghat near the Mahabaleshwar. It flows into the Bay of Bengal before forming a large delta. Its length is about 1400 km. 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। The Tungabhadra, Koyna, Ghat Prabha, Musi, Bhima are the some of its tributary. Its basins cover the part of the Maharashtra, Karnataka and the Andhra Pradesh. Now come to the last ones, that the Kaveri rivers or the Kaveri basin, which is the most southern rivers in the peninsular area. Okay, it rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat and flows into the Bay of Bengal south of Cuddalore in the Tamil Nadu. The length of the rivers is about 760 kilometers. Its main tributaries are the Amravati, Bhavani, Himavari and the Kabini. The Kaveri drains in the part of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. यानी कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहती, तीन स्टेट्स में, दैट इज कर्नाटका, केरला और तीन तमिलनाडु। ये तीन एरिया हैं, तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे ये नदी ड्रेन होती है या बहती है। द कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इन इंडिया, नोन एज अ शिव समुद्रम। ये देख ले, यानी कि सबसे इंडिया का सबसे जो सेकेंड नंबर का बिगेस्ट वाटरफॉल है वो शिव समुद्र कावेरी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, देख ले। Now come to the lakes. Lakes is the important source of water within a country or in the world. The lakes are the useful to human beings in the many ways. They are the tourist destination and also used for sport activity like the boating, swimming, water sports etc. So it is a great source of a revenue. India has the many lakes. There are the permanent as well as the seasonal lakes. Seasonal lakes contain water only during the monsoon seasons. The lake found it in the inland drainage basin in the semi-arid region like the Sambar salt lake is area. It will be used to produce the salt. Sambar lake सबसे ज़्यादा salted lake in country और in the Rajasthan, जिससे salt produce किया जाता है. Lake in India are formed in the different forces such as the action like glaciers, ice sealed by the water and the river actions or the human activities. कई कारणों से ये रिवर बन सकती है, ये लेक बनती हैं या ग्लेशियर एक्टिविटीज़, आइस की वजह से या रिवर्स की वजह से या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. A meandering rivers occurs in flood plains from cut off that the lake later developed into the Oxbow Lake. ये देख लें. Spits and the bar from the lagoon in the coastal area, उससे भी एक एक्टिविटीज़ बनती है जब कोस्टल एरिया का हिस्सा अलग हो जाता है, लाइक द चिल्का, पुलिकट एंड द कोलरू लेक्स. ये देख लें, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए लेगून्स लेक्स. इसके अलावा अगर हम बात करें, सम फ्रेश वाटर लेक्स इज ऑल्सो अवेलेबल. फ्रेश वाटर लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर डिग आउट ए बेसिन विथ ए लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट वाटर. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन द हिमालय रीजन, यानी कि जितने भी फ्रेश वाटर के लेक हैं वो ज़्यादातर हिमालय एरिया में ही मिलते हैं. लाइक द वुलर लेक्स इन द जम्मू कश्मीर इज द रिजल्ट ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वुलर लेक बना है. द वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. द डल लेक, नैनीताल, भीमता, लोकतक एंड द बारापानी are the some of the important fresh lakes which is the biggest source of water.
Apart from the natural lakes, the damming of the rivers from the generation of a hydel power has also led the formation of a lake such as the Guru Gobind Sagar lakes, which is on Bhakra Nagal Dam in Satluj rivers. ये देख लें, यानी कि डैमिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी कई बड़े बड़े लेक बन जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा गुरु गोविंद सागर कहा जाता है, देख लें, जो भाखड़ा नागल डैम के पानी को स्टोर करने की वजह से बनता है, देख लें। अब बात करें इंपॉर्टेंट ऑफ द लेक्स। लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्स हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर्स ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल। इट प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग ए ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द डेवलपमेंट हाइडल पावर प्लांट, यानी कि इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इन द moderate the climates of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance the natural beauty, helps develop tourism and provide recreations। ये देख लें, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे फीचर्स हमें यानी कि देखने को मिलते हैं लेक्स की वजह से। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, बट द 97% ऑफ दैट इज द सॉल्टी वाटर। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज द फ्रेश वाटर, 3/4 इज ट्रैप्ड एज आइस, यानी कि बहुत कम एरिया है जो पे हमारे वाटर का जो पीने लायक है। बिगेस्ट लेक्स आर कॉल्ड द सी, यानी कि जब लेक बहुत बड़ी हो जाती है उनको सी कहा जाता है, लाइक द कैस्पियन सी, द डेड सी एंड द अरल सी। ये देख लें, यानी कि लेक्स का बड़ा रूप कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सी के नाम पे हमें देखने को मिलता है। नो, rivers are very important for the development of the humans or the human life or any economical activities. River have played an important role through the human history. Most of the ancient civilization exist on the rivers banks. अगर हम अपने हड़प्पा की बात करें, इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, मोहनजोदड़ो, मेक्सोपोटामिया या किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो रिवर्स के बैंक में ही डेवलप हुई, यानी कि रिवर्स के किनारे में ही डेवलप हुई। वाटर फॉर्म्स रिवर्स इन द बेसन, नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिवर्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, रिवर्स से ही अफेक्टेड होती है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर द इरीगेशन, facility for the navigations, fishing, and they provide the water for the domestic use like the washing, cooking and the drink etc। यानी कि वाटर का मल्टीपल पर्पस यूज़ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए हम रिवर्स वाटर का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी कि इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि इट्स इज वेरी रोल्स इन द सोशल और द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बट टुडे इज द वन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रिवर्स पॉल्यूशन। आज की डेट में हम बात करें, रिवर्स पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर में फॉर द वाटर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि जैसे जैसे वाटर की डिमांड बढ़ी है, इसका एक्सप्लोरेशन भी बढ़ा है और रिवर पॉल्यूशन भी बढ़ा है। एज ए रिजल्ट मोर एंड द मोर वाटर इज ड्रेनेज आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम देयर। अनट्रीटेड सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आर इम्पेक्टेड इनटू द रिवर्स पॉल्यूशन, यानी कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ये रिवर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ है। ये देख लें, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन पॉल्यूशन लेवल्स हैव रिवर pollution of rivers is continuously rising. एफर्ट आर बीइंग मेड टू प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन। इस रिवर्स पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जा रही है, लाइक द गंगा एक्शन प्लान्स विच इज इनिशिएटेड इन द ईयर 1985, जिसमें बहुत सारी कोशिश की गई हाउ टू रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन ऑफ द गंगा, जिसमें कि गंगा को पॉल्यूशन का कम करने के लिए लगभग 50-70 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है टू रिमूव the pollution of from the Ganga river system. So that is our topic. If you find any problem, you can contact me or message me on my. Till then, have a nice day. Thank you all of you.